एआई और रोबोटिक्स जैसे हवाई माना जाता है, तो उनके सीनियर्स जब परम आदरणीय श्री नरेश कंतूर जी के रेफरेंस से मुझे मिले तो उन्होंने आज बड़े ही हंसमुख अंदाज में मुझे बोला कि गुंजन, इस एआई और रोबोटिक्स का तो डर ही निकाल देते हैं सबके सामने से। तो मैं बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे परम आदरणीय श्री नरेश कंतूर जी को सादर आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम, जो हमारे एआई और रोबोटिक्स में एज ए मॉडरेटर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम, प्लीज। Good evening, everyone. I would like to share something about Mr. Naresh Kantur ji. He is the founder and MD of Ancon Systems, and sir is having a vast experience in electronics, telecommunication, engineering for last 40 years, and he started with appropriate automation promotion laboratory, a government of India and R&D Center for Applied Automation. Later worked with many multinational companies in India and overseas in the field of industrial automation equipments, and subsequently as an automation specialist. Sir is having a passion and enjoys sharing the knowledge gained in last 40 years and experience in industrial automation, being a regular faculty and advisor to several industrial and government bodies for delivering knowledge sharing seminar for several industrial participants. And sir, please share something about the automation and robotics. Thank you. Thank you, Gunjan ji, for inviting us for this AI and automation and robotics session. मेरे साथ में मेरे कुलीग्स हैं, वो पैनल के मेंबर हैं। मैं पहले चाहूँगा कि मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूँ। डॉक्टर सुनील झा, प्रोफेसर IIT दिल्ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अनूप वाधवा, डायरेक्टर ऑटोमेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, अमन अफरेजा, जनरल मैनेजर फानुक इंडिया। प्लीज कम। Dr. Sunil Jha did his PhD in Process Engineering and Mechanical Sciences from IIT Kanpur, and he has been working in IIT Delhi for last 15 years. He has so many patents signed in his behalf and which are commercially utilized in the industry. इसके पहले Dr. Jha has worked with various industries including Tata Jamshedpur, and he would be sharing his experience and research on various aspects of artificial intelligence and robotics. Anup Wadhwa is also alumni of IIT Delhi, and he has worked in a very large corporate, and we have been together several decades ago into the same industry. He has worked in a very senior position in BHEL, Rockwell Automation, Samtel, and many other industries. At the moment, he is director of Automation Industry Association and also director of IIT Delhi and AI Foundation of Smart Manufacturing. FSM is a very important aspect जो IIT दिल्ली में पोजीशन है, and it is being funded by Ministry of Heavy Industry. और MSME में लोग उस पर्टिकुलर फैसिलिटी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, उनको ये बताएंगे अपने सेशन में कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट फैसिलिटी फॉर आवर एप्लीकेशंस। क्योंकि जनरली एक समझ में आता है कि MSME दे आर स्केयर्ड ऑफ ऑटोमेशन, कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास बंदे नहीं है, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो दोज मिथ दिस टू जेंटलमैन आर गोइंग टू आंसर कि हाउ वी कैन बेनिफिट ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज। Aman Atreja is more than 20 years into robotics. He is a gold medalist in mechatronics, and he has worked with various automation and robotics company. पिछले 10 साल से you are with Fanuc. For last 10 years he is with Fanuc and specializing in robotics. उसके बारे में he will enlighten us that what type of different robots are available and how it can be utilized. Now आज का जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, AI एंड रोबोटिक्स, ये क्या है? इसके बारे में काफ़ी मिथ्स हैं कि whether they are connected or they are not connected. देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट and robotics is a entirely different subjects. Robotics is like a mechanical arm, जैसे हम लोग का हाथ है, which is like a robot, and it is going to function
with a command given by our brain. तो ब्रेन क्या है? ब्रेन की इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारे हाथ मूव करते हैं, एंड रोबोट विल मूव एज पर दैट, एंड हु इज गोइंग टू कंट्रोल? दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द इंटेलिजेंस विच इज फेड इनसाइड द रोबोट. अब उस इंटेलिजेंस को हम कितना स्मार्ट बनाते हैं, दैट इज बीइंग डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ नियर ह्यूमन कैपेबिलिटीज. मैंने बोला नियर ह्यूमन कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को तो कभी कोई पार ही नहीं कर सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर बनाना है तो उसके लिए ह्यूमन चाहिए, तो उसको आर गोइंग टू प्रोग्राम इट. तो जितना स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो रोबोट से उतना क्लोजली टू ह्यूमन काम करा पाएगा. लाइक हमारी आर्म एज ए रोबोट बड़े कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करके कुछ भी कर लेती है, उतने कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को अगर मॉनिटर करना है या बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टू बी डेवलप्ड इन सच ए डिसेंट एंड प्रॉपर मैनर. So a lot of data science goes into it, lot of deep data programming goes in. Dr. Jha will give more insight into this subject because this has been his one of the favorite. और उन्होंने कैसे इस टेक्नोलॉजी को कन्वेंशनल टूल रूम की जो मशीन्स होती हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया है, he will share all those things. Robots have been in industry since 1960s. तब से रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में for various applications which are more of a hazardous nature of applications. We can replace routine mundane application. रोबोट का भी इवोल्यूशन होता चला गया और कई सालों में रोबोट्स हैव कम टू ए लेवल कि जहाँ पे इट हैज कम टू ए 5th जनरेशन रोबोट, व्हाट वी कॉल एज ए कोलैबोरेटरी रोबोट. अमन विल डिस्कस मोर अबाउट रोबोट, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड एंड कम टू ए लेवल ऑफ व्हाट वी कॉल एज ए कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स. इस कंटेक्स्ट के साथ में आई विल नाउ लाइक टू इनवाइट डॉक्टर झा to come on the stage and give his presentation. Mr. Jha. So thank you Naresh ji for this invitation and be part of this big audience here. जितना मैंने सेशन सुना मुझे लगा कि आप सब हिंदी में ज़्यादा वाकिफ़ हैं और हिंदी में मैं बताने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं. तो मेरा प्रेजेंटेशन एक बार लगा दीजिए. तो एटलीस्ट ये जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स तो काफ़ी समय से है. रोबोटिक सिस्टम्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को भी मालूम होगा, जानकारी सभी को रहती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ है पिछले कुछ सालों में. जहाँ तक देखें आप सबको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई एप्लीकेशन आपको मालूम है? चैट जीपीटी. गुड. सो चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन तक और आपके डेस्कटॉप तक ला दिया है. तो जब यूटिलिटी समझ आती है तो हमें सब चीज़ें समझ आती है. तो मैं आपको केवल यूटिलिटी पे फोकस करूंगा बिकॉज इस छोटे सेशन में टेक्नोलॉजी के बारे में बताना संभव नहीं है. बट जितना एप्लीकेशन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में और बिजनेस में कैसे मदद कर सकती हैं, मैं वो सब को आपको बताने की कोशिश करूंगा कुछ स्लाइड्स के माध्यम से. जो मेरी पहली स्लाइड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग. नॉर्मली हम लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते आए हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि पहले उनको प्रोग्राम करना पड़ता है तब वो हमारा काम करते हैं. तो मशीन लर्निंग जब डेवलप हुआ तो उसकी और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जब डेवलप हुई तो उसमें ये रहता है कि उनको प्रोग्राम ना करना पड़े कि क्या करना है नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन देने की जगह पे हम उसको केवल डेटा दे दें और डेटा के बेसिस पे वो मुझे बता दे आउटपुट कि ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है. तो इस तरह की जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग. वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है. जब हम सब मशीनें यूज़ करते हैं, मुझे जहाँ तक याद समझ आ रहा है कि बिकॉज अब आप इंडस्ट्री से हैं, आप सबके पास मशीनरी है. तो मशीनरी की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बहुत अच्छे से सॉल्व की जा सकती हैं. कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे मेंटेनेंस से संबंधित. तो मेंटेनेंस से संबंधित कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई और पता भी नहीं चला. जब क्रिटिकल पार्ट प्रोडक्शन में है या क्रिटिकल कस्टमर का जॉब प्रोडक्शन में है, सप्लाई कल सुबह पहुंचानी है और मशीन ने जवाब दे दिया. अब ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मेंटेनेंस तो हम रेगुलरली कर ही रहे थे. 3 महीने में मेंटेनेंस किया, 6 महीने में मेंटेनेंस किया, साल में मेंटेनेंस किया. उसके बाद ही मशीन अचानक फेल हो गई, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ऐसी सिचुएशन ना आए जब हमारा क्रिटिकल फंक्शन की जब आवश्यकता हो. तो उसमें जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का जो प्रिडिक्ट कर दे, मशीन फेल होने से पहले आपको बताना शुरू कर दे. जैसे आपको बड़ी बीमारी होने से पहले ना छोटे छोटे सर्दी जुकाम बुखार आना शुरू हो जाते हैं और अगर आप केयरफुल हो जाते हो तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है. सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल है कि मशीन को बिग फेलियर से बचाने के लिए
मशीन लर्निंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम उस पर कुछ सेंसर्स लगा दें और उनका कुछ डेटा आना शुरू कर दें, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल हैं जिनको यूज़ करके एटलीस्ट हमें समय रहने से पहले, समय फेलियर होने से पहले उनकी जानकारी मिल सके। जैसे हम टूल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कितनी लाइफ बची हुई है, तो हर बार अगर आप मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे, कई बार जजमेंट करेंगे आँख के बेसिस पे, तो वो सही नहीं है। अगर मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर एग्जांपल मैं मशीनिंग के लूँगा क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो मशीनिंग अगर कर रहे हैं तो कितनी लाइफ टूल की बची हुई है। अगर आपने नया जॉब लगा दिया और टूल बीच में चेंज करना पड़ रहा है तो वो क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करेगा और आपका टाइम भी यूज़ करेगा। तो ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को प्रेडिक्ट करने के लिए हम कुछ मॉडल यूज़ करते हैं। सडन कोई फेलियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस तरह का फेलियर होने की संभावना है, तो वो हम मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन मॉडल से यूज कर सकते हैं। और अगर मशीन कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा रही है जो पहले कभी नहीं ऑब्जर्व हुआ, तो इस तरह के बिहेवियर को भी पकड़ा जा सकता है आसानी से मशीन लर्निंग से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, यूज केस थे, ये इससे चलेगा ये, हाँ ठीक है। जैसे एक नया एक एग्जांपल ही था, जैसे एल्गोरिथम और मैथमेटिक्स इतनी कठिन नहीं है जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, बिकॉज ये सरलता से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल जैसे यही है, तो हमने जैसे एक मशीन है, इस पे 2 सेंसर्स लगा दिए, एक वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए लगा दिया और एक इसका करंट नापने के लिए लगा दिया कि मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रही है। अब मान लो यही एग्जांपल को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है और पता करना है कि मेरी मशीन सही चल रही है नहीं चल रही है, केवल इतनी जानकारी भी दे देगी तो सफिशिएंट है। तो उस केस के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसका डेटा प्लॉट कर दिया कि जब मशीन कितना करंट कंज्यूम कर रही है और कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो नीले ट्रायंगल दिख रहे हैं ये मशीन के अच्छे बिहेवियर है। और फिर हमने क्या किया कि लाल डॉट जो दिख रहे हैं ये सब बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहे थे या ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये रनिंग कंडीशंस ठीक नहीं है। तो अगर हमने कुछ पहले का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो जब भी नया पॉइंट आएगा, जैसे ये अभी करंट रनिंग कंडीशन है जो हरा डॉट है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये सही कंडीशन है या गलत कंडीशन है, बिकॉज इसके नज़दीक के पॉइंट अगर हम देखेंगे, अगर लाल उसके आसपास ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये एनोमलस बिहेवियर है, और ग्रीन और ब्लू ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर। तो इस तरह के प्रेडिक्शन रियल टाइम में किए जा सकते हैं। मशीन मेंटेनेंस के अलावा इसका एक बहुत अच्छा यूज़ क्या है कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं कि बनने के बाद नापनी चाहिए, क्योंकि जितने प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनकी क्वालिटी बनने के बाद हम मेजर करते हैं। लेकिन जो क्वालिटी का नया कंसेप्ट है इंडस्ट्री 4.0 में, वो क्या है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए जब चीज़ बन रही है, तब तो आप उसको बचा पाएंगे। अदरवाइज तो बनने के बाद आप रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, तो वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल और रिसोर्सेज हो जाता है। तो मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जब आप चीज़ बन रही है उसमें आप मेजरमेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सिग्नल आ रहे हैं उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि ये सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो जैसे मशीनिंग का जो जॉब है, कितने लोग मशीन्स के बारे में फेमिलियर हैं, जैसे मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ओके गुड, सो सम ऑफ यू ऑलरेडी फेमिलियर। तो जब कटिंग हो रही है तो सरफेस के ऊपर कितनी रफनेस आ रही है, ये नॉर्मली हम लोग अलग इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजी में जाके मेजर करते हैं तब पता चलता है। बट यहाँ पर क्या है कि बिना एक्टिव मेजरमेंट किए, बिना इंस्ट्रूमेंट के लगाए, केवल आप ये डेटा अगर ले लेंगे वाइब्रेशन का, टेम्परेचर का, एनर्जी का और स्पीड फीड का, इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि सरफेस पे कितनी रफनेस आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हमको इस मशीनिंग के ड्यूरेशन में पता चल जाएगा तो करेक्टिव एक्शन लेके हम मशीनिंग को सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मशीन लर्निंग हेल्प करते हैं। ये एक मशीन है जो IIT में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये किताब के एग्जाम्पल नहीं है, ये वो एग्जाम्पल हैं जो हमने लैब में करके देखे हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपके यहाँ भी यूजफुल हो सकते हैं तो आपके यहाँ ट्रायल भी किया जा सकता है इन सब चीज़ों का। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने मशीनिंग किया, टूल वियर को पहले मेजर किया और उसके बेसिस पे फिर देखा कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्शन आ रहा है उसके बीच में कितना मेजरमेंट है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ये प्रेडिक्शन सही बताता है, तो उतना भी बहुत है। अगर हम मशीन का टूल वियर 95% प्रेडिक्शन के साथ और क्वालिटी, जैसे ये रफनेस के प्रेडिक्शंस हैं, रफनेस मेजरमेंट्स के जो डॉट हैं वो आपको दिख रहे होंगे ऑलमोस्ट ग्रीन डॉट के पीछे है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन डॉट और रेड डॉट्स के बीच का मार्जिन बहुत कम है, कि जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो बहुत एक्यूरेट है और वो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिडिक्ट करती है, बिना ऐसी सिचुएशन में जाए हमको अगर पहले से पता चलेगा तो हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं।
ये जैसे एक बहुत पुरानी, अब ये लगता है कि सारी टेक्नोलॉजी तो नई है, मशीनें पुरानी है, तो इन सब पे कैसे काम करेगी। तो ये भी है कि इसके भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने आईआईटी में किया कि ये 30-40 साल पुरानी मशीन है, लेथ मशीन है, सब जानते हैं। इस मशीन को भी स्मार्ट बनाया, इस मशीन को भी स्मार्ट बनाया, उसी तरीके से परफॉर्म कराया जैसे नई सीएनसी मशीन्स काम करती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंसर सेट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर हमने इसके ऊपर भी मशीन लर्निंग लगाई। तो ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग केवल नई मशीन्स के लिए है, पुराने के लिए काम नहीं करेगा। तो नई मशीन्स पे भी ये सारे मॉडल अप्लाई किए जा सकते हैं और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है वेल्डिंग का, सो बिकॉज ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस है। तो इसमें क्या है कि रोबोटिक्स भी है और आपकी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने यूज किया। वेल्डिंग एक ऐसी ऑपरेशन है, वो सेम जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको डिफेक्ट नहीं पता चलते हैं, और एक बार वेल्डिंग हो जाने के बाद जब पार्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है तब पता चलता है कि इसमें डिफेक्ट्स हैं। कुछ डिफेक्ट सरफेस के होंगे जो दिख जाएंगे आंखों से, कुछ डिफेक्ट उसके अंदर है जो नहीं दिखाई देंगे। जब हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं तब पता चलता है कि डिफेक्ट आ रहा है इसमें। तो ऐसी चीजों को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सके, तो रोबोटिक वेल्डिंग के साथ में मशीन लर्निंग को यूज करके एक एग्जांपल हम लोगों ने आईआईटी में बनाया हुआ है। तो जिसमें अगर आप देखेंगे कि ये हमने कुछ डेटा कैप्चर किया था, कि अगर आपको समझ आ रहा है तो ये ऊपर वेल्डिंग के फोटोग्राफ्स लिए हमने, तो जो वेल्ड प्रोड्यूस हुआ उसके फोटोग्राफ्स लिए, और फिर हमने केवल वेल्डिंग पावर का जो सोर्स है उसका करंट मॉनिटर किया। तो आपको इससे बड़ी जल्दी पता चलेगा कि जहां करंट का वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसमें वेल्डिंग क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है। अगर हम इसी डेटा को मशीन लर्निंग में दे देंगे तो वो ड्यूरिंग वेल्डिंग हमें बता देगा कि इसके अंदर जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमारे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और मशीन की अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए काफी यूजफुल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए। और आगे या ये जो आपने चैट जीपीटी की बात की, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप मशीन लर्निंग और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, बिजनेस में कैसे काम कर सकते हैं। पर्सनल तो ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर आ गया। बट यहाँ क्या है कि आपके पास जैसे कंपनी का डेटाबेस है, आप कहीं ना कुछ डेटा मेंटेन करते हैं, चाहे फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करते हैं, प्रोडक्शन का डेटा मेंटेन करते हो। चैट जीपीटी अभी क्या करता है कि वो पूरे विश्व के डेटा से आपको आंसर देता है। हमारा इंटरेस्ट पूरे विश्व के डेटा में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट हमारे अपने डेटा में है, जो हमारे मशीन का और हमारे जो प्लांट का डेटा है, हम उससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपका कंपनी का डेटाबेस से आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर दे सकता है। तो या तो आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए, वो क्वेरी लिखेगा फिर आंसर आएगा, और या फिर हम सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर हमारे को उसी तरीके से देता है जैसे चैट जीपीटी देता है। ये बहुत यूजफुल टूल है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके जितने मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट होते हैं प्लांट में, तो सारे पीडीएफ फाइल्स होंगे या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर वो डेटा अगर हम दें और फिर इसको बोले सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके कि ये मैं क्वेश्चन पूछूं, बता दे कि भाई इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, तो बजाय वो 300 पेज का मैनुअल पढ़ने के वो सीधे आंसर दे दे, तो हमारा टाइम बचता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर टेक्नोलॉजी विच चैट जीपीटी इज यूजिंग। ओपन एआई यूज करके, जैसे अगर मैंने पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग द मशीन, तो उसने सीधे आंसर दे दिया, हमें मैनुअल पूरा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आपको स्पेसिफिक पेज नंबर या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे देगा, तो आप मेंटेनेंस का टाइम बचा सकते हैं और कई सारी चीजें सेव कर सकते हैं। तो ये क्विक एग्जांपल्स थे। दिस इज अबाउट रोबोट। अगर आपको कभी भी लगता है आपके प्लांट में ऐसा वर्कर होना चाहिए, अगर आप देखेंगे इफ आई कैन हैव अ 100% लॉयल एम्प्लॉय दैट नेवर फॉल्स सिक, is willing to work 24 hours a day without complaint and thrives on doing same thing over and over again, कहीं ऐसी जरूरत अगर आपको महसूस होती है तो वो एम्प्लॉय केवल रोबोट है। मैं यही बंद करता हूँ बिकॉज बाकी लोग आपको फिर रोबोट के बारे में और बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट हमारे बीच परम आदरणीय श्री अंकित अलग जी भी मौजूद हैं, उनकी टीम से, जो यूनिटेक सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज़ आप एक बार मंच पर आएँ और आपकी टीम भी आए, हम आपको ऑनर करना चाहेंगे। एक्चुअली इनकी फैक्ट्री में एक कैजुअलिटी हो गई है, फिर भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो आई रिक्वेस्ट कि हम इनको ऑनर कर सकें प्लीज़। क्षमा चाहूँगा, एक अच्छे से सेशन के अंदर 2 मिनट का विराम लिया हमने, क्षमा कीजिएगा। तो प्लीज़ मिस्टर कंतु कंटिन्यू प्लीज़। डॉक्टर साहब ने बताया कि 40-50 साल पुरानी लेथ मशीन पे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बिल्ड करके उसको आज के टाइम के हिसाब से स्मार्ट मशीन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। चैट जीपीटी का जिक्र किया था, somebody mentioned चैट जीपीटी। आप में से कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, वेरी गुड। मेरी कंपनी में कुछ हमारे सीनियर मैनेजर्स को दिक्कत थी कि काफ़ी टाइम से हम इंग्लिश में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ऐसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने में दिक्कत थी। तो उनको एक बार चैट जीपीटी का कोर्स कराया, और अभी जिस तरह की मेल जाते हैं तो शायद कोई इंग्लिश का पीएचडी भी हैरान हो जाएगी जिस तरह की वो लैंग्वेज उसमें वो लिख देते हैं कि दिस इज़ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं अमन को इनवाइट करूँगा। अमन इज़ फ्रॉम फालुक एंड ही इज़ गोइंग टू गिव सम गुड वीडियोस आल्सो, ताकि आप उस एक्चुअली इंडस्ट्री में रोबोटिक्स क्या कर रहे हैं। लेट अस वेलकम हिम विद द बिग क्राउड for this honor and for the opportunity. जब तक लैपटॉप सेट करते हैं आपको मैं थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ। एक जो मैंने फानुक ज्वाइन किया था 10 साल पहले, और उससे पहले भी मैं रोबोटिक्स में इन्वॉल्व था, रोबोटिक सेक्टर में। सो मेरे रिलेटिव्स जो मोस्टली बिजनेसमैन हैं, दे यूज्ड टू आस्क मी कि अरे यार हमारे घर में रोबोट कब लगाओगे, हमारी फैक्ट्रीज में रोबोट कब लगाओगे। वन ऑफ माई रिलेटिव दे आर मेकिंग फर्नीचर, तो उन्होंने पूछा फर्नीचर के लिए रोबोट्स कब आएंगे, हमें बड़ा दिक्कत हो रही है लेबर से, जितने भी हमारे मिस्त्री लोग होते हैं। मेरे जो मामा हैं उनका अपना बिजनेस है इसके लिए, चेयर्स के लिए, दे मेक चेयर्स फॉर स्कूल्स एंड ऑल। दे ऑल्सो आस्क्ड मी, वन ऑफ अदर रिलेटिव दे हैव अ रेस्टोरेंट, उन्होंने बोला यार सर्व करने के लिए भी हमें रोबोट चाहिए। बट आई कैन टेल यू राइट नाउ ग्लोबली ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। सो उस लेवल तक रोबोट्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। एंड इन इंडिया ऑल्सो वी आर स्टार्टेड गेटिंग मेनी इंक्वायरीज। इंडिया में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमने बहुत रोबोट ऑलरेडी दे दिए हैं। So you will be surprised very soon, maybe in the next few years, I am sure आपके घरों में भी शायद आपको रोबोट्स दिखने शुरू हो जाए। So right now we'll talk purely on the industry point of view। ये इंडस्ट्री में हमने कहाँ रोबोट्स दिए हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, AI कैसे यूज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी वीडियोस दिखा के थोड़ा इंटरेस्ट कोशिश करूंगा आपका हो इसमें कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है इसमें। जैसे डॉक्टर झा ने बताया कि मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू हम कैसे कैसे इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकते हैं आपके मशीन्स में या रोबोट्स में। These points mostly are already covered, कितने टाइप की एआई होती है एंड कहाँ लगा सकते हैं। I will straight away come to the video part। उससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम फानुक, तो फानुक क्या कंपनी है, हम क्या करते हैं, सो दैट यू नो कि कितनी अहमियत है यू नो दुनिया में फानुक की, और हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है एआई के सेक्टर में। सो फानुक इज अ जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी। वी आर नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सीएनसी मशीन्स एंड ऑल्सो रोबोट्स। आप अगर सीएनसी मशीन यूज करते हैं, आई एम श्योर आपको फानुक का नाम पता होगा। सीएनसी कंट्रोलर्स आपने फानुक के देखे होंगे अपनी फैक्ट्रीज में। सो लास्ट 65 ईयर से हम रोबोट्स बना रहे हैं। आप देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह के 2 और 3 एक्सिस गैंट्री रोबोट्स आया करते थे पहले, एंड द एडवांस्ड कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो रिसेंटली अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन मिलते हैं। और फानुक की सर एक और बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि हम अपने रोबोट्स पहले अपनी फैक्ट्री में ही यूज़ करके ट्राई कर लेते हैं। सो हमारी खुद की फैक्ट्रीज 26 फैक्ट्रीज हैं जापान में, जहाँ पे लगभग 6000 रोबोट्स लगे हैं। वेयर रोबोट्स मेक रोबोट्स, लाइट्स आर ऑफ बिकॉज रोबोट्स को लाइट नहीं चाहिए। रोबोट्स हैव देयर ओन कैमरास, दे कैन सी थ्रू द कैमरास, एंड थ्रू दैट लेवल ऑफ ऑटोमेशन वी आर एबल टू अचीव द हाईएस्ट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे फैक्ट्री को विजिट किया था नवंबर 2019 में। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे नरेंद्र मोदी फानुक जापान, आपको वीडियो मिल जाएगा। सो यू कैन सी वर्ल्ड लीडर्स आते हैं हमारी फैक्ट्रीज देखने के लिए कि किस लेवल की ऑटोमेशन पॉसिबल है दुनिया में। और इंडिया में भी हम काफ़ी हद तक काफ़ी आगे जा चुके हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड्स में। उससे पहले लेट मी शो यू सम स्मॉल वीडियो हमारी फैक्ट्रीज का, रोबोट्स कैसे बना रहे हैं वहाँ पे। सो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीसीबी हैं, छोटे छोटे कार्ड्स हैं, चिप्स हैं, सर्वो मोटर्स हैं, कनेक्टर्स। तो ये सब फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हैं।
You will see operators usually to do some mundane task, but mostly it is robotized. बट ये आप इमेजिन करिए कि इन रोबोट्स में कितनी इंटेलिजेंस हमने बिल्ड की है कि ये ऑटोनोमसली काम कर सकते हैं। ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। कहाँ हम यूज कर सकते हैं रोबोट्स को? आप देखिए यहाँ पे हम वेल्डिंग एप्लीकेशन है, जैसे ऑटोमोटिव में तो आप जानते हैं मारुति बिल्कुल नजदीक है यहाँ से। सो मारुति में ही हमारे तकरीबन 3500 रोबोट 3500 रोबोट्स इंस्टॉल्ड हैं, मोस्टली फॉर वेल्डिंग। आप अगर मारुति बेल्ट शॉप गूगल करेंगे आपको उसमें पीले रंग के रोबोट्स दिख जाएंगे, दिस इज ऑल फॉर सीलिंग एप्लीकेशन है, पेंटिंग है, हैंडलिंग है, असेंबली है, डीबरिंग है। अब जैसे डॉक्टर झा ने बताया कि अब वेल्डिंग आप कर रहे हैं, आपको वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी चाहिए, ऑन द फ्लाई आपको चेक करना है कि एआई कैसे डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव सम इंटेलिजेंस बिल्ट इनटू द रोबोट टू डिटेक्ट व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ टू कंट्रोल द पैरामीटर्स टू मेक इट बेटर। सो फानूक ने अभी एआई का यूज कैसे किया रोबोट्स में, मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल्स देता हूं यहाँ पे। सो देखिए बेसिकली हमने रोबोट्स को आंखें और सेंस दे दिए, टच करने की सेंस, राइट। सो आंखें मतलब हमने कैमरा दे दिया उसको, 2D एंड 3D कैमरा। अब उसमें हम क्या होता है, जो भी कैमरा देख रहा है उसका फीडबैक देता है वो रोबोट को, एंड रोबोट ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अब मुझे ये पॉइंटर पिक करना है यहाँ से, तो मेरी आंखें देखती हैं और मैं कोऑर्डिनेट्स XYZ में डिसाइड करता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं इस टेबल के ऊपर, और मेरा हाथ जाके उसको पिक कर लेता है। सिमिलर वे में आपको रोबोट को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। एक कैमरा है जिसने एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, उसके XYZ कोऑर्डिनेट्स रोबोट को दिए, एंड रोबोट जस्ट गोज देयर एंड पिक इट अप। दैट्स हाउ इजी इट इज। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वी हैव बिल्ट इनटू द रोबोट, बट दैट्स नॉट इनफ। अभी हम बात करेंगे एरर प्रूफिंग की। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वालिटी चेक्स में कैसे इसका काम होता है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर एक हम ट्रेडिशनल वे से, अगर हम एक नट है जो कि एक मेटल की प्लेट के ऊपर वेल्ड किया हुआ है, अब किसी भी एंगल में वो आप देखेंगे उसको, अगर नट को, इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों मेटेलिक पार्टिकल्स हैं, दोनों मेटल बन के बने हैं। सो द लाइट विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द नट एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्लेट, इट इज सो शाइनी कि कैमरा को पता नहीं लगता कि नट है कहाँ पे, नट की ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो हेक्सागोनल नट है या वो स्क्वायर नट है। सो इन सब एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए एआई सिस्टम के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू हम उसमें एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, जिसमें कि हम टीच करते हैं उसको इमेजेस। जैसे हमने 50, 60, 100 इमेजेस टीच कर दी कि ये ओके है, ये नॉट ओके है। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सो विद दिस काइंड ऑफ मेथड रोबोट को, अगर आप ये इमेज देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, साइड में इट इज नॉट इवन विजिबल whether this is a nut or not, right hand side top, but a AI based camera system along with the robot will be able to identify कि हाँ nut present है यहाँ। Another way, आपकी मान लीजिए आपके कुछ बॉक्सेस हैं, डीपैलेटाइज करना है मुझे, बॉक्सेस आते हैं ना कि एक पैलेट के ऊपर, अब उसको आपको एक एक बॉक्स उठा के अलग करना है। अगर बॉक्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो कैमरा को वो गैप दिखता ही नहीं है, उसको लगता है ये पूरा एक सिंगल बॉक्स ही है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी यूज स्पेशल एल्गोरिथम्स टू डिफाइन कि कितनी फाइन लाइन को वो रोबोट डिस्टिंग्विश करेगा कि ये एक बॉक्स नहीं है, ये दूसरा बॉक्स स्टार्ट हो गया यहाँ से। सो अगेन वेरियस ब्लॉब टूल्स, आई एम यूजिंग सम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हियर, ब्लॉब टूल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पार्टीशन ऑफ द बॉक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द एडजेसेंट बॉक्स एंड आल्सो द सेंटर ऑफ द बॉक्स। एक बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। ये एक बिग पिकिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि 3D कैमरा यूज किया है। 2D कैमरा आपने देखे होंगे, 3D कैमरा में ये डेप्थ भी को भी कंफर्म करता है। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप में एक कैमरा लगा हुआ है, दिस इज अ 3D कैमरा, एंड नीचे एक बिन है। सो दिस कैमरा इज गोइंग टू टेक अ स्नैप ऑफ द कंपोनेंट्स इनसाइड द बिन व्हिच आर रैंडमली प्लेस्ड। ऐसे जस्ट फेंके हुए हैं कंपोनेंट्स, कोई अरेंज करके नहीं रखा। रोबोट ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि उसको कंपोनेंट के फ्लैंक से पिक करना है या आईडी से पिक करना है या ओडी से पिक करना है। ये इंटेलिजेंस रोबोट के अंदर है, और हमने रोबोट को प्रोग्राम भी नहीं किया, रोबोट अपना प्रोग्राम खुद ही जनरेट कर रहा है।
depending upon the feedback it is getting from the 3D camera. So अब देखिए, अभी आपको एक लंबी सी कन्वेयर चाहिए होगी, एक पैलेट चाहिए होगा, अगर आपने एक रोबोटिक सेल लगा दिया, ये ऐसा रोबोट, इसकी क्या प्राइस है? सर रोबोट की जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है रोबोट का पेलोड कैपेसिटी, कितना वेट उठा सकता है और उसकी रीच कितनी है, जस्ट लाइक आवर आर्म, राइट? सो अब ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये 12 किलो इसका पेलोड है, 12 किलो वेट उठा सकता है, और इसकी जो रीच है वो आप मान के चलिए 1.4 मीटर के करीब होगी, 1.4 मीटर रेडियस। तो ये रोबोट की जो कॉस्ट है आप रफली 11 से 12 लाख के करीब होगा, और इसमें आप ग्रिपर लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे और प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एड ऑन हो जाता है। तो मारुति जैसे उद्योग और एमएसएमई जैसे उद्योग में कुछ डिफरेंस है या सेम? सर आपके लिए कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम सेल्स, सो आफ्टर द मीटिंग वी कैन टॉक। But yes, sir, our intention is not only to sell to OEMs. Our intention is कि भारत की प्रगति कैसे होगी, एक देश की प्रगति कैसे होगी, अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस नहीं लेके आएंगे, हम एक इंटरनली तो ठीक है हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मालूम है हमारी क्वालिटी में कितने पैसेट आते हैं हमें आज के डेट। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करें। सो फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अब जापान से ये रोबोट आते हैं, इनकी कस्टमबिलिटी जीरो है, ओनली बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स कि हमें हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इंपोर्ट करके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सो वी सपोर्ट MSMEs, OEMs all on the same parity. So this way we have many applications which I would like to show to you, but with the time constraint मैं सीधा कोलैबोरेटिव रोबोट्स पे आता हूँ जो कि नई जनरेशन के रोबोट्स हैं। तो आपने सर अभी देखा हमने कुछ इंटेलिजेंस बिल्ड की है, सेंस, फीलिंग ऑफ टच एंड विजन विच वी हैव गिवन। कोबोट्स में क्या होता है, दिस रोबोट्स डज नॉट रिक्वायर एनी फेंस, आपको जेल में बंद करने की जरूरत नहीं है रोबोट, इट इज ओपन एंड दैट वे यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ टास्क विच आर वेरी डिफिकल्ट टू डू यूजिंग अ नॉर्मल रोबोट, खास करके असेंबली ऑपरेशन है या बिल्डिंग ऑपरेशन है। अब रोबोट तो ले लिया और उसको प्रोग्राम कौन करेगा, उसके लिए एक अलग स्किल चाहिए। सो इस केस में आप देखेंगे रोबोट को हाथ से आप मूव कर सकते हैं और उसके पॉइंट्स जहां जहां वो मूव कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो रोबोट इज लाइक अ फ्री फ्लोटिंग आर्म, आपकी एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो मूव कर सकता है और आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स टैप करने हैं पेंडेंट के ऊपर, उसके पॉइंट्स जो मूवमेंट के पॉइंट्स हैं 3D कोऑर्डिनेट्स के, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप उसको वेल्डिंग में यूज करो, हैंडलिंग में यूज करो। So again, we have made it more easier, safer to operate with the human beings, with the operators around. Then AI is also used, as Dr. Chha earlier mentioned. AI is also used in the prediction of the health of the robot. अब हमें पता है कि रोबोट की मूवमेंट कितनी हो रही है रियल में, कितनी टॉर्क आ रही है मोटर्स में, कितना लोड आ रहा है, एनवायरनमेंट आसपास में धूल मिट्टी कितनी है। मान लीजिए आपकी कोई कास्टिंग इंडस्ट्री है या फोर्जिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली रियल टाइम डेटा कैप्चर करते हैं, एनालाइज करके ये सॉफ्टवेयर बताते हैं अगेन थ्रू AI एंड मशीन लर्निंग कि आपके रोबोट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी, आपको उसका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस शेड्यूल क्रिएट हो जाता है। सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस एंड आई एम श्योर विद द डिस्कशंस फर्दर वी विल हैव much more enriched applications. If you have any doubts, any queries, you can meet me after the session also. Thank you so much. रोबोट की एप्लीकेशन आपने अभी जो देखी वो इंडस्ट्री में ही देखी है, अदरवाइज रोबोट्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक बार हमने एक एग्जीबिशन में अपना एक कोलैबोरेटिव रोबोट लगाया था, उसमें दो रोबोट, एक रोबोट के हाथ में ग्लास था, एक में कोका कोला की बॉटल थी, वो उसमें कोका कोला सर्व कर, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव शो। उस दिन गलती से मेरे सिस्टर की डॉटर देखने आई एग्जीबिशन, तो उसने बोला कि मामा क्या आप सिमिलर मेरे शादी पे लगा सकते हैं, उसकी मैरिज थी, कि उसमें वाइन सर्व करें। तो हमने वो रोबोट उसकी मैरिज के फंक्शन पे लगाया, जहाँ पे रोबोट के एक रोबोट के हाथ में ग्लास था, एक के पास वाइन की बोतल थी और वाइन सर्व करा। बहुत हिट हुआ, लोगों ने दूल्हा दुल्हन को कम देखा, वो रोबोट को ज़्यादा देखा। उसके पास खड़े होकर वो सेल्फी और वीडियो बनाते रहे। और मजा तब आया जब शादी के बाद में जब बिल सेटल हुए तो मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे से लड़ने आ गया, ये क्या लगवा दिया कि मेरा 1 लाख का एस्टिमेट था, वाइन का 4 लाख का बिल। Now with that we would like to invite Anup
Anup is heading the Federation of Small Manufacturing, FSM, IIT Delhi के साथ में collaborative efforts है. We will throw some lights onto those aspects, how we can use those facilities and how effectively MSME can use it. आपने एक MSME का सवाल किया था, तो how MSME can use it? अभी जो दो प्रेजेंटेशंस हुए तो मज़ा आया आप सभी को? लगता नहीं है मज़ा आया। मज़ा आया? अब जब हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी देखते हैं तो हमारे अंदर कैसे विचार चलते हैं? जैसे किसी ने पूछा प्राइस क्या है, सो दैट इज थिंकिंग लाइक अ कंज्यूमर बिकॉज यू वांट टू बाय द मशीन। हमारे ऑडियंस में कितने लोग हैं जो एक्चुअली कंज्यूमर हैं? हाथ ऊपर करें। रोबोट खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो कम लोग हैं, तो जो ज्यादा लोग हैं वो बायर नहीं है रोबोट के, करेक्ट ना एआई के। तो आपका आज का सेशन अटेंड करने का क्या पर्पस हो सकता है? नॉलेज, वेरी गुड। और दिमाग के पास रहेगी तो फ्यूचर बाद कैसे यूज करें, ओके, की चीज है जिसमें आप यूज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक हम सोचते हैं एज अ कंज्यूमर, कोई नई चीज आती है सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या मैं ये खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। मुद्दा खरीदने का नहीं है, वो अमन जी के हैं, वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, बट मुद्दा आज का है कि हमें देश कैसे बनाना है, हमें बाकी में आत्मनिर्भर देश बनाना है कि नहीं। और जब तक हम ये चीजें खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, इधर उधर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो हमारी इकोनॉमी डिरेल हो सकती है। ये सबको क्लियर है? अच्छा, हमारे परिवार में मिनिमम कितने इंजीनियर हैं? जरा गेस करिए। 5 और 6, 7। आपके एक्सटेंडेड परिवार, कजन्स, अंकल, सबको लेके भाभी, कितने लोग होंगे? 15-20 तो होंगे। तो 15-20 में 2-3 इंजीनियर्स तो होंगे, राइट? तो यानी कि ये जो मैसेज है, आज अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं और आप अपने परिवार में कम्युनिकेट करें तो कम से कम 200, 300, 400 इंजीनियर्स, वुड बी इंजीनियर्स या एक्चुअल इंजीनियर्स को ये मैसेज जा सकता है कि ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है, इंडिया में आ गई है, और हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे अपने देश के लिए लगाएं, कैसे समझें। लाइक वेरी good, some of the youngsters are here, they want to learn, but more important is that there is an opportunity of such wonderful companies like FANUC, leading institutes like IIT, and very sensible entrepreneurs like Naresh ji. We are all part of one big team, and our goal is how do we develop capability of Indians to design, manufacture, execute and support such high technology projects. तो क्या ये मुद्दा हम सभी के लिए रेलेवेंट है क्या? तो आइए आगे चलते हैं। टॉपिक में इस बार ऑटोमेशन में रोबोटिक्स भी आ जाता है, एआई सॉफ्टवेयर लेवल पे आ जाता है, उसको एक सिंगल वर्ड बोले तो ऑटोमेशन, बट इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ ह्यूमन वेलफेयर के साथ। कई मुद्दे आए पीछे के हम ईवीज बना रहे हैं तो क्या पॉल्यूशन वाकई कंट्रोल होगी नहीं होगी वगैरह। हमें अपना अगर ह्यूमन वेलफेयर को देखना है तो हमें ह्यूमंस को मशीन्स नहीं बनना है। हम में से कितने लोग 20 घंटा काम करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता ना। अगर 20-24 घंटे काम करना है तो वहाँ रोबोट लगाओ। तो हमें जो अपना क्रिएटिविटी, अपना जो इंटेलिजेंस, अपना जो विजडम, अपना जो हमें करना है, उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर टू मेक द फैक्ट्रीज स्मार्टर, द मशीन्स स्मार्टर, बट फॉर दैट वी हैव टू ऑलवेज बी द बॉस।
एंड दैट्स व्हाट आई मीन ह्यूमन वेलफेयर। ये टेक्नोलॉजी जितने स्पीड से धड़ाधड़ चल रही है उससे ज़्यादा हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा कि we will have to be the masters and not become the slaves of this technology. Next. Sorry, I can use this. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे। हमने सबने देखा कि जो काली पीली टैक्सीज हैं अब खत्म हो गई हैं। ये रिपोर्ट 2018 की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी कि इंडिया इज अ हाई रिस्क कंट्री क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और बहुत सारे एसएमजीज हैं। अगर हम ये टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं कर पाए, अगर हमारे इंजीनियर्स स्मार्ट फैक्ट्रीज नहीं बना पाए तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ऑब्सोलीट हो जाएंगी तो जॉब्स चली जाएंगी। So it's really important for us to look at this technology from not only the point are we going to buy, but how as a ecosystem we are going to gear up. ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ये है। पर हम किस दुनिया से गुजर रहे हैं? फानुक ने दिखाया कि क्या आगे की संभावना है, बट क्या हमारे आसपास ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहां पर क्वालिटी विदाउट ऑटोमेशन मैनेज हो रही है? यस और नो? नहीं हो रही है। जहां पर स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज है वहां पे इंस्पेक्टर क्या करता है? एक आदमी होगा, एक लेडी होगी, हर एक चीज को वो जैसे लाइन से जा रही है, आंखों से देखती होगी, 8 घंटे काम करती होगी। डू यू थिंक ह्यूमन डिग्निटी इज देयर इन दैट जॉब? नहीं ना। तो उसको कैसे रिमूव करोगे? उनको टूल्स दोगे, सपोर्ट दोगे। सो दैट इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन वेलफेयर। ये तो हमने सभी ने देख लिया, तो इसको स्किप करता हूं। ये एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोबोट तो उसको चलाएगा भी, बट जैसे डॉक्टर झा ने दिखाया कि मशीन अपने बारे में रिपोर्ट करेगी। यानी कि मशीन चल रही है, आदमी उसके सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी काम भी कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मशीन उसको एसएमएस देगी, व्हाट्सएप देगी, या इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज में अनाउंस करेगी कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आके इसको ठीक करिए। तो ये संभावना अगर हमें जनरेट करनी है तो ये कोई इंपोर्ट के बेसिस पे नहीं होगा, ये सारा इंटीग्रेशन का मामला है। तो नरेश ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कंपोनेंट्स को लेके ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये एक्टिविटी इंडिया में होगी और हमारे लोग ही करेंगे। तो हमें इस लेवल तक आने की जरूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे अवेयरनेस की बात है, आज एक अवेयरनेस का सेशन है। रिस्क है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कि कितना वो डालेंगे फंड्स, किस रेट पे आ रहे हैं। नॉलेज गैप है, कॉम्पिटेंसी का गैप है, और कल्चर और डेलीगेशन का गैप है। तो इसमें कॉम्पिटेंसी और कल्चर पे अगर हम फोकस करते हैं तो ये इट बिकम्स अ ह्यूमन इश्यू, यानी कि ये अब एक टेक्निकल इश्यू नहीं है, ये एक ह्यूमन इश्यू बन गया है। अगर हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट्स कम हैं, जैसे काली पीली टैक्सीज के प्रॉफिट्स कम थे, दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन न्यू कार्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सो अ लॉट ऑफ आवर यूनिट्स विल नॉट बी एबल टू डू दिस। सो इसके लिए भी तोड़ हमें निकालनी है कि जो हम पैसा लगाएं वो सेंसिबली ऐसा लगाएं कि उसमें से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो। यानी हमें सबसे पहले तो ये पता होना होगा कि हमारे लॉसेस क्या हैं, लीकेजेस क्या हैं। एक चीज और ध्यान में रखने की बात बहुत जरूरी है कि जो आज बताया गया, ये दो अलग अलग दुनिया का एक किस्म का समावेश हो रहा है। एक है ऑटोमेशन, जहां मशीन बहुत हाई
प्रोडक्शन कर सकती है, फास्ट कर सकती है, ऑटो इंस्पेक्शन कर सकती है। ह्यूमन नीड डिज़ाइन में है, इंजीनियरिंग में है, मेंटेनेंस में है, बट ऑपरेशन में ह्यूमन नीड ऑलमोस्ट कम जीरो की तरफ जा रही है। दूसरी टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन, जहाँ पर हम AI की बात कर रहे हैं, चैट GPT की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कोई चीज़ जानना चाहते हैं, यूट्यूब का आपने किया और आपको सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ऐसे प्रोडक्शन पे क्या हो रहा है, वो डिजिटलाइजेशन आपको हेल्प करता है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ऑटोमेशन पे बहुत फोकस दिया, हमें चूज करना है कितना ऑटोमेशन पे फोकस करना है, कहाँ डिजिटल पे फोकस करना है। ये जैसे आप डीप जाएंगे आपको ये सब पता चलेगा। पर मेन मुद्दा डीप जाने का क्या है? मेन मुद्दा डीप जाने का है कि हम इन चीजों में कैपेबिलिटी बढ़ाएं, और कैपेबिलिटी बढ़ाने का इतना इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने भी इसको एक मुद्दा दिया, समर्थ उद्योग करके एक नाम दिया। अब हर एक कंट्री का एक अलग अलग रीजन था स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री 4 में जाने का। हम में से कितनों ने इंडस्ट्री 4.0 का नाम सुना है? ओके, व्हाट वाज द रीजन फॉर द जर्मन्स टू गो फॉर दिस? एनी आइडिया? Why did the Germans think about all these technologies? Their people did not want to go and work in the factories outside of Germany. They wanted to control and monitor the plants outside Germany, sitting in Germany. वो उनकी नीड थी। हमारी नीड क्या है? स्लाइड चुप रही है कि तो उसमें आंसर था। हमारी नीड है ह्यूमन एम्पावरमेंट की। अभी हमारे लोग बहुत लो एंड काम करते हैं। आप जिनकी भी फैक्ट्रीज हैं, आप उनका अगर एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि उस जॉब से उसको सैलरी तो मिल रही है, उसको जॉब फुलफिलमेंट शायद नहीं मिल रही है। पगार लेके जा रही है, रोटी कपड़ा मकान का खर्चा वो सब मीट हो रहा है, बट एक जो उसका ह्यूमन पोटेंशियल है वो उस जॉब में उभर के नहीं आ रहा है। बहुत कम लोगों का उभर के आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव सो मेनी डिग्री होल्डर्स, बट येट द इंडस्ट्री डजंट फाइंड केपेबल पीपल, बिकॉज वी आर ऑल डीलिंग विद ह्यूमंस एज कमोडिटीज, एंड दैट इज अ शेम फॉर आवर कंट्री। वी हैव टू, हमें जागृत होना है। मतलब हमारे अंदर एक क्रिएशन की पूरी संभावना है। जो सर ने कहा कि इंटेलिजेंस जो ह्यूमन है वो सबसे ऊंची है, तो वो हमारी नीड है कि पूरा खुले, पूरा एक्सप्रेस हो। और वो कैसे होगा? वो होगा एजुकेशन से। और एजुकेशन 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 यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हमारी इंडस्ट्री जो है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, जैसे फानोक वगैरह है, नरेश जी हैं, हम लोगों ने कोलैबोरेट किया IIT से एक ये सेंटर के लिए, और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया। तो इसमें हमारा मैंडेट यही है कि जितने संसाधन हैं, जितने मानव हैं, रुपया खर्चा है, तकनीक, ये सब एक साथ इसको हम ऐसे इंडिया सेंट्रिक सॉल्यूशंस बना के देखें, दिखाएं, और इससे फिर जागरण आए और इससे फिर और नए नए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ें। तो ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटी है। मैं आप सभी को अपने टीम के बिहाफ पे इनवाइट करूंगा। 29 मई आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 3 बजे से 5 बजे। प्लीज आप सभी नोट कर लीजिए। 29 मई 3 to 5 वी आर डूइंग एन MSME डे। तो आप खुद भी आइए, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके नेबरहुड में एसोसिएशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में इस मुद्दे को समझने में इंटरेस्टेड हैं और अपने लोगों की स्किलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, we'll be very happy to receive you. My colleague is sitting there, Naman, with an FSM T-shirt. Please give your cards and he'll be very happy to send you the formal invitation. So upskilling of workforce पे ज़्यादा मुद्दा है, और अगर हम ये करते हैं और उसके बाद फिर
प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने फानो कोलीग से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके आ रहा हूँ कि पहले एजुकेट करिए, फिर नई टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करिए, क्योंकि ये ओनरशिप आपको ही करनी है और आपको ही इसको आगे संभालना है। और उसके बाद कीप वर्किंग ऑन योर SOPs, टैलेंट पूल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में है क्या है, मेंटेन एंथुजियाज्म। कोई भी चीज़ को एक्सीलेंस करना हो, उसको सस्टेन करना हो, आपके यहाँ कल्चर ऑफ एंथुजियाज्म आना ज़रूरी है। यानी कि आपके लोग जो हैं कलेक्टिवली बोले यस बॉस वी आर विथ यू, हम ऐसा रोबोटिक और ये सारा कल्चर लेके आएंगे, पर आप हमें ट्रेन करिए, हम आपके साथ हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर वांटिंग टू डू। समर्थ लोग रहेंगे तो समर्थ उद्योग रहेगा, तो आत्मनिर्भर भारत रहेगा। थैंक यू। थैंक्स अनूप फॉर गिविंग दैट इनसाइट। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई हैव सम क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू माय पैनलिस्ट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोर प्लीज? यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम सब के आपने एम्प्लॉइज के लिए कोई प्रोग्राम रख दिया है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी नॉलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी आर स्टूडेंट, हम इस AI को रोबोटिक्स में अपनी नॉलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आई थिंक सो अगर जिज्ञासा है और इच्छा है तो साधन भी है। सो ये है कि हम ये सारे प्रोग्राम्स और न्यू डेवलपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी के ना ये करिकुलम में अभी नहीं है, और इंस्टीट्यूट लाइक IIT भी सीख रहे हैं और अभी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। तो हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स हैं जहाँ हम जैसे आज यहाँ एक अवेयरनेस, एक बहुत छोटा सेशन था, बट आधे दिन का फुल डे का पूरा एक टेक्नोलॉजी पे पूरा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये भी सिखाते हैं। हमारा मेन इंटेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी को सरल बनाना। मतलब अगर मुझे हाई कॉस्ट में बेचना है तो मैं कठिन बनाऊंगा, है ना, लेकिन एज ए प्रोफेसर मुझे चीज़ें सरल बनानी है ताकि आपको समझ आए और हमारी मेंटल समझ आए। तो ये सारी चीज़ें हम बड़ी सरल करके समझाते हैं, क्योंकि लास्ट 6-7 साल में ये सारी टेक्नोलॉजी हमने अपने लैब में खुद डेवलप करके सीखी है। तो हमारा इंटेंट यही है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे टीचर हो, उनको लाके दिखाना कि ये कितना सरल है इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आप भी 29वीं को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नहीं। अदरवाइज भी हमारी वेबसाइट है ifsm.in, और नमन से आप डिटेल ले सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स करते हैं, वो सारी जानकारी रहती है, और थ्रू आउट द ईयर हम इन सब टेक्नोलॉजीज पर प्रोग्राम करते हैं। कैसे कि हमारे एक स्पेशल डिपार्टमेंट हमने बनाया था अराउंड 4 years बैक, फानुक एकेडमी। सो हम ना कि सिर्फ कस्टमर्स को ट्रेन करते हैं, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, बट हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स, नॉट AI इज लिटिल एडवांस फॉर देम। बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन वेरियस application various areas. We are also a partner of World Skill Organization. So ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, जिसमें कि लोगों की स्किल की इन्हांसमेंट के लिए उनको क्या क्या प्रैक्टिकली चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए। सो काफ़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि वर्ल्ड स्किल ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वी सपोर्ट देम बाय गिविंग ट्रेनिंग टू देम सो दैट दे कैन विन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस। रिसेंटली एक कॉलेज है CV Raman इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर, सो दे हैव won this competition using Fanuc robots and we train them here in India. So these kind of things are available as Dr. Jha mentioned, and if you are interested you can definitely contact us. इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग में जो हमने रियलाइज किया है कि जब हम अपनी फैक्ट्रीज के लिए ऑटोमेशन इंजीनियर से रिक्रूट करने जाते हैं डिफरेंट कैंपस में, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ऐसा इंजीनियर मिले जो ऑटोमेशन की पूरी टेक्नोलॉजी को समझता हो, राइट फ्रॉम सेंसर से IO डिवाइसेस, उसका इंटेलिजेंस पार्ट, PLC प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स। आज तक पिछले 20-25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, हर बार ये गैप जरूर मिला। इस साल हमने एक अपना मिशन बनाया कि वी आर गोइंग टू ओपन ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्रेनिंग फॉर अप्रोप्रिएट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ सेक्टर 37 में 1 जुलाई को हम पहला बैच रन करेंगे, ट्रायल बैच, जिसमें किसी रॉ इंजीनियर को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या मैकेट्रॉनिक्स का हो या मैकेनिकल का हो, उसको 3 महीने में इस लाइक बनाएंगे कि इंडस्ट्री उसको बुला के जॉब दे, ताकि वो पूरी तरह से ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ऊपर में फंक्शन कर सके। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में टेक्नोलॉजी वेयर इट इज हेडिंग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे कहाँ विराम लगेगा या बढ़ता जाएगा? सो सी टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, ये तो श्योर है,
लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने कहाँ करना है वो हमने डिसाइड करना है। तो हमारी जो चीज़ें सरल करने में मदद कर सकती हैं वो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करनी है। एंड सर्टेनली बिना ह्यूमन स्किल के बड़े हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। ये दोनों एक तरीके से विरोधाभास लगता है। एक जगह लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारा रोल ले लेगी और फिर मैनेजर्स क्या करेंगे, सब इंटेलिजेंस तो मशीन के पास पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमने टेक्नोलॉजी को वहाँ यूज़ करना है जहाँ एप्रोप्रिएट है। मेरा सेशन वही था। जैसे अगर एक सिंपल चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी अगर मुझे मेंटेनेंस मैनुअल को पढ़ के बता सकती है तो एक बहुत सही है। और भी कई यूज़ हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आगे ग्रो करेगी, हमें अपनी स्किल्स को उसके साथ ग्रो करना है और करना है। जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो उसके साथ में आजकल पेपर में पढ़ा होगा काफ़ी सारी गवर्नमेंट उसकी एथिकल वैल्यू के ऊपर काम कर रही है। तो व्हाट डू यू थिंक एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड एथिकल वैल्यूज अटैच्ड टू इट, क्या होने वाला है? So there are always two sides to any invention. When it is originally developed, it comes as a very innovative, pure idea. उसके बाद क्या होता है, भीड़ चाल उसको एज अ प्रोडक्ट और एज अ बिजनेस करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसमें कई बार बहुत सारे मिसयूज होते हैं, बैड यूजेस होते हैं। अब जैसे वॉरफेयर के लिए सेम टेक्नोलॉजीज को भी यूज, अब ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, कल को ड्रोन अटैक्स इंडिया में होने शुरू हो जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी इज neither good nor bad. We have to only make sure that it goes into good hands as much as possible. And the other thing, also about technology is that it can be very distractive. Chat GPT को भी ले लें या WhatsApp को भी ले लें. For many people, it is becoming distractive, isn't it? Whereas the same mobile helps you to do so many things productively. So I think as Indians we also got to be clear that how are we on the production side, productivity side, cost effectiveness side, quality side. And वो macro ठीक होगा तो फिर मेरे ख्याल से ये जो हमारा overall approach है वो सही होगा. We cannot say micromanage this thing, but as a macro management, yes, I think if we are all conscious, we'll probably manage it well. अमन, एक आपसे सवाल है कि अभी एक सज्जन ने पूछा था कि रोबोट का जो आपने वीडियो दिखाई थी क्या कॉस्ट, इससे 11-12। मेरा सवाल है कि क्या रोबोट अकेला काफ़ी है क्या? जैसे आपने 11-12 लाख का रोबोट तो बोल दिया, लेकिन रोबोट का प्रोजेक्ट करने के लिए सर आपका सवाल था ना रोबोट कितने का पड़ेगा? 11-12 लाख। तो रोबोट के अलावा तो बहुत कुछ चाहिए होता है। Can you throw some light? What else is required? Is your question similar, sir? No, I had a little bit of a different twist to it. हाँ। कि सर इंडस्ट्री 4.0 का बात कर रहे हैं, but इंडस्ट्री 4.0 includes IoT, big data, machine learning, etc. And इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगा, your cost of operational cost of production will go down, and your productivity will go up, and in the end you will be able to sell the goods probably at a lower price. But Industry 4.0 implement करना for an SME is going to be a very challenging task because they will not be able to probably afford the kind of investment needed in technology and everything. So how does an SME, I talk about SMEs because I have worked with SME as an investment banker for years now. So how does an SME fights this? Because the big keeps getting bigger and the difference between the bigger players and the smaller player keeps increasing. I think this price part is a myth. Yes. Yeah, you can answer, but before that I just want to say price part is a myth. अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? I have a Ciaz. You have a Ciaz. Some people also drive expensive cars. Ciaz आप चला रहे हैं तो आपके घर से आपके काम पे जाने के लिए आधा घंटा लगता होगा, let us presume. अगर आप Maruti 800 चलाएं तो भी आधा घंटा, तो उसमें कॉस्ट फैक्टर नहीं आता। सिमिलरली इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट फैक्टर को शुरू में देखना इज अ रॉन्ग थिंग। इम्प्लीमेंट करके देन यू ड्रॉ द बेनिफिट, देन यू सी अरे कितना एडवांटेज इज, हाउ मच मनी आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें इंडस्ट्री 4.0 करके आपको इतना एम्पावर कर दिया जाता है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गेट, वरना मिलती नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन।
ऐसे MSME में बात करते हैं कि हमारी OE, जैसे जो लोग OE के बारे में जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है 90% आ रही है, 85% आ रही है। जब आप इंडस्ट्री 4.0 लगा के एक्चुअल डेटा कैप्चर करते हैं तो नज़र आ रहा है कि वो 60% है, 65% है, अदरवाइज आपको मालूम भी नहीं पड़ता। तो सडनली यू फाइंड देयर इज अ गैप ऑफ 20% एंड व्हाट वी कॉल एज ए फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री, वो डिस्कवरी के हिडन फैक्ट्री विद इन द फैक्ट्री, एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम इंडस्ट्री 4.0। तो आप पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके देखोगे कि आपको इतना एडवांटेज मिला, आपकी इतनी हिडन कैपेबिलिटीज नजर आई जिसको आप एनकैश कर सकते हैं। आप मिस्टर जैन बैंक के बारे में बता रहे थे ना, यू वर टॉकिंग अबाउट बैंक इंटरेस्ट के बारे में। आई वाज थिंकिंग वेल सेड सर, मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अपडेट करना ही पड़ेगा। आपका जो एंड कंज्यूमर है, और की डिमांड, फॉर एग्जांपल आज से 10-15 साल पहले हम जो मशीनरी लेते थे, फॉर एग्जांपल वो 5 लाख की आती थी, आज भी आती है वो 5 लाख, लेकिन अपग्रेडिंग मशीनरी लेने से क्वालिटी ऑफ जॉब इम्प्रूव हो जाता है और आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और जो एंड कंज्यूमर है उसकी डिमांड हुआ है तो आपको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द उसका मार्केट। कोई चॉइस करेक्ट। अमन नाउ कमिंग बैक टू यू, इंडस्ट्री 4.0 टर्म का मतलब किसी को क्लियर नहीं है। इट्स अ बास्केट ऑफ 9 टेक्नोलॉजीज, जब वो आपस में मिल के करते हैं वो पूरे उसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। एग्जाम्पल सपोज आई से वी आर गोइंग टू बी अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपके दिमाग में आपको कुछ आता नहीं, एक बड़ा सा नंबर है। सेम वे इंडस्ट्री 4.0 के बहुत सारे स्टेजेस हैं। मैं स्टार्टिंग और सेकेंड फेज की बात करूंगा। पहला है डिजिटाइजेशन। क्या आप डेटा को मैनुअल से लेके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इजीली ट्रांसमिट हो उस लेवल के कल्चर में आ रहे हैं कि नहीं, पहले वहाँ आना शुरू करिए। तो वो आपको अगर ऑब्सोलेसेंस से बचना है तो बड़े लोगों के सप्लायर बने रहना है या उनसे कहीं कहीं कम्पीट करना है। आपको जर्नी तो शुरू करनी है, जो उनका प्लीज स्टार्ट डोंट डिले, बट यू स्टार्ट ओनली विद डिजिटाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि उससे आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअल लीकेजेस क्या हो रहे हैं, कहाँ पर आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कहाँ आपके वेस्टेजेस जा रहे हैं, कहाँ मशीन आइडल है, OE वगैरह। फिर आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, उसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन। जब आप ये 2 करेंगे तब फाइनल फेज आता है जो बड़ी कंपनीज बात कर रही हैं, जो बोइंग्स और जनरल मोटर्स बात करें, दे आर टॉकिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। I don't think we can jump straight to digital transformation till the people are ready and these 2 steps are there. So most important is काली पीली टैक्सी वाले नहीं बनना, नहीं तो बंद हो जाओगे। चलना है तो शुरू करिए, और डिजिटाइजेशन का कॉस्ट आप आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है। It is nothing to worry about, that's all I can say. Okay, Aman. Yes, sir, just to quickly answer your question. My question was कि is robot enough, or what you need other things than robot to make a project? So सर, फानुक या हमारी जैसी जितनी भी कंपनी जो रोबोट्स बनाती हैं, हम बेसिकली रोबोट बनाते हैं एज अ जनरल आर्म, एज अ जस्ट एन आर्म, और दैट्स अ डम्ब आर्म व्हिच डज नॉट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो उसमें एक सिस्टम पूरा डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मशीन में से लोडिंग अनलोडिंग करनी है, कोई CNC मिलिंग मशीन है, टर्निंग मशीन है, उसमें कंपोनेंट को लोड करना है और टर्निंग के बाद अनलोड करना है। तो इसके लिए नॉलेज चाहिए मुझे कि मैं ग्रिपर कैसे बनाऊंगा, जो सेंसर होगा वो सेंस करेगा कि कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे बफर कितना चाहिए, कितने कंपोनेंट्स का बफर चाहिए कि एक बार आदमी ने ऑपरेटर ने लोड कर दिया रॉ मटेरियल को और वो चला गया किसी और काम के लिए, रोबोट ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। सो हु विल डिजाइन ऑल दिस सिस्टम, द सेंसर्स, the grippers, the conveyors, so this whole, and then after that you have to integrate all these and make sure this all works efficiently as per the original design, जिसकी वजह से हमने रोबोट सोचा था कि रोबोट लगाएंगे वहाँ पे। So and the programming part, integration, so they have all these things which are required, which actually makes a complete solution. So this is the reason we feel that robot just is nothing, and we definitely need integrators, and I think Encon system is one of the pioneer integrators in this particular field, who is giving this solution. And this is the hour of the need where the people should go to the market and understand requirement क्या है, solution क्या चाहिए, ना कि just robot कौन सा लगाना है। तो थंब रूल ये है कि अगर आप कोई रोबोट प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो टेक द कॉस्ट ऑफ द रोबोट मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 1.5 to 2 times, that would be the cost of the project. Well, with this we close to this session, so we are running out of time. So I must thank Dr. Jha,
Anup Barwa and Aman Atreja for this wonderful session in giving the insight into artificial intelligence and robotics. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। बट इस सेशन को क्लोज करने से पहले राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो जिस तरह का इंडस्ट्रियल आईओटी यूज़ करते हैं तो आपसे थोड़ा सा मिलता जुलता है तो थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट, बट आप सब पैनलिस्ट हैं, सब सीनियर्स हैं, तो साथ में कनेक्ट होंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आई रिक्वेस्ट मिस्टर मुकेश शर्मा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। मिस्टर मुकेश शर्मा विजुअल ड्रिंक्स कंपनी में हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कंपनियां बनाती हैं जो यूज़ कर रही हैं कंट्रोल पैनल्स वगैरह, उस पर आप हमें कुछ सुझाव दें प्लीज़। अभी एआई रोबोटिक्स के बारे में जितना कुछ सभी लोगों ने, बहुत सीनियर लोग हैं मेरे से यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा देखा, हमने सुना, और सबसे ज़्यादा सर बैठे हुए हैं जो उन्होंने ऑटोमेशन एसोसिएशन के बारे में बात की, वो मेरे फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अभी इंडस्ट्री में एआई रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, लेकिन उनका रियल सेंस में बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं अपना एग्जांपल भी लूँ तो 1997 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर भी लोग ये नहीं समझते कि मैं करता क्या। मीन्स इतनी कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बहुत इजी नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि एआई में हम कैसे जा सकते हैं या कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं। हमने उस टाइम में काम किया है, 1997 में गूगल नहीं था। हमको पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत मोटे मोटे मैनुअल पढ़ने पड़ते थे। मैंने सीमेंस के सिस्टम हाउस से अपने कैरियर की शुरुआत की 1997 इन गुड़गांव। अप्रॉक्सीमेटली 5 साल मैंने काम किया उस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने बहुत सारे बिस्किट प्लांट्स के ऑटोमेशन किए हैं सर, और उसके बाद 1 साल मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बिस्किट प्लांट में काम करने का मौका भी मिला, क्योंकि 5 साल मैंने पीएलसी की प्रोग्रामिंग और पूरे ऑल ओवर इंडिया सारे मेजर जो बिस्किट प्लांट के मैन्युफैक्चरर हैं, पार्ले, ब्रिटानिया, ये सभी प्लांट मैंने अपने हाथों से लगाए हैं ऑटोमेशन में। और एक टाइम होता था जब हमारी टीम पहली बार प्लांट लगाने के लिए गई तो करीब उसने 3 महीने लगाए थे उस टाइम। 3 महीने में हमारी ऑटोमेशन की प्रोग्रामिंग वहाँ पे सीमेंस की हेल्प से पूरी हुई थी। और जब मैंने ज्वाइन किया तो ये 1 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 96 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम जहाँ हमने जॉब शुरू किया था। तो 97 में मैंने 1 साल के अंदर अपने आप को ऐसा एफिशिएंट बनाया था, अपनी पूरी टीम को। वैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, लेकिन आज के टाइम में मैं मल्टी स्किल्स हूँ। मैं खुद से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैंने बहुत चीज़ें लर्न की हैं, अभी भी सीखता हूँ, डेली सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और वही इनोवेशंस हैं कि जब इंडस्ट्री में डिजिटाइजेशन की बात नहीं होती थी तब हम डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। हमने मदर डेयरी जैसे प्लांट्स में ऑटोमेशन किए, हमने हीरो, मारुति, इनके वेंडर्स, मीन्स इतना बड़ा सेक्टर है। फानुक आज से हम लोग नहीं जानते, फानुक, सीमेंस या ये बड़े बड़े ऐसे नाम हैं। मैंने करीब 12 साल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड किए हैं। और बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे मॉजरवेयर अभी तो शायद अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन जगहों पे मैं सीमेंस के एक प्लेटफॉर्म है S7400 रिडंडेंट सिस्टम, तो उन पे स्पेशली सीमेंस की तरफ से रिकमेंडेड ट्रेनिंग के लिए भी मैं बहुत जगहों पे मैं गया हूँ। और बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर हमने जो पुराने सिस्टम जो जर्मनी से हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी में लोग लेके आते हैं रेट्रोफिटिंग के लिए, तो काफ़ी सिस्टम हमने रेट्रोफिटिंग किए जो S5 to S7 अपग्रेड हुए। और बहुत सारे तो ऐसे सिस्टम्स भी रहे हैं कि जो अपग्रेड कभी नहीं हो पाए। लेकिन ये थोड़ी आउट ऑफ द सब्जेक्ट हो गई अभी चीज़। तो अभी मैं बेसिकली अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। एक बार फर्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी स्लाइड नहीं बनाई है, सिर्फ 4 पेज की स्लाइड है, उसी पे मैं अपनी बात रखूंगा। बेसिकली जब मुझे पता चला, कल ही एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे पता चला, तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया कि एआई के ऊपर भी हमारा कोई सब्जेक्ट या डिस्कशन है। तो सिग्निफिकेंस इन एआई इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, स्लाइड का काफ़ी पार्ट छिपा हुआ है।
तो सबसे बड़ी चीज है, इंडस्ट्री में आज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात होती है कॉस्ट। अभी सब लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले कॉस्ट, ROI क्या है और उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो ताकि मार्केट में वो कम्पिटिट कर पाए। साथ ही क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप अब्सोल्यूट हो जाएंगे, आपको मार्केट से लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है और सोच समझ के करना है। हम इंडस्ट्री 4.0 की, मैं एक सीमेंस के हमारे एसोसिएट रहे काफ़ी करीब में 8-10 साल पहले, जब ये टर्मिनोलॉजी आई थी तो मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर। सीमेंस क्योंकि जर्मन बेस्ड कंपनी और ये टर्मिनोलॉजी भी जर्मन की है, तो मैंने जब जर्मन सिंटैक्स में उन लोगों से बात किया कि इंडस्ट्री 4.0 में अभी सीमेंस का क्या रोल प्ले हो रहा है, तो उस दिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। करीब 4 साल बाद वो एसोसिएट इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग पे जर्मनी गए, तो उसके बाद बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि उन लोगों ने उस दिन आके बात किया, बोले सर जिस चीज पे हम आज ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं आप 4 साल पहले से उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं अपना वीडियो ट्रिक्स का बेसिकली वही बताना चाहता हूँ कि इस सारे एरिया में, AI में या मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस लाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो सर ने बताया था कि डिजिटाइजेशन ही है। उससे पहले आप इंडस्ट्री 4.0 पे नहीं पहुंच पाएंगे। इंडस्ट्री 4.0 तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इंडस्ट्री जो हमारे MSME के लिए इंडस्ट्री 4.0 आज अचीव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। हम अच्छी मशीन ले आएंगे, स्मार्ट मशीन ले आएंगे, लेकिन जब बात होगी इंडस्ट्री 4.0 कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन की, तो उसको ऑटोमेटेड तरीके से चलाना जरूरी नहीं है। हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारे करेक्शंस देना भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस लेवल पे तो हमारी मशीनें ही नहीं है, हम तो पुरानी लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं। अभी जो सर ने भी बताया कि हम अपनी पुरानी मशीन से भी डेटा तो निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट तो बना सकते हैं हम। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि हमारी MSME के लिए आज की डेट में लो कॉस्ट सॉल्यूशंस चाहिए। रोबोट्स अपनी जगह है, रोबोट्स अपना रोल प्ले करेंगे। जब मारुति में वेल्डिंग का काम होगा तो वहां पे हमें सस्टेनेबल क्वालिटी चाहिए। हीरो अगर कोई अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रही है तो वहां रोबोट के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जो उनके छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, वहां सब जगह पे आप रोबोट भी नहीं लगा सकते, ये भी सच है। तो अलग अलग छोटे उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले आज की डेट में अपने लीकेजेस का पता करें। और वो लीकेजेस तभी संभव है जब हम अपनी इंडस्ट्री में थोड़े से बहुत ही माइनर लेवल से डिजिटाइजेशन की शुरुआत करें। डिजिटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या बड़ी बड़ी सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन लगा दें। सबसे पहले मैं एक बहुत ही डिजिटाइजेशन का एक सिंपल सा एक प्रोसेस बता देता हूँ कि डिजिटाइजेशन है क्या एग्जैक्टली। कोई भी डेटा को अगर आप कहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे अभी भी कर रहे हैं आप डेटा को तो रिकॉर्ड, लेकिन रजिस्टर में कर रहे हैं। जब उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो आप उस रजिस्टर को तो खोल ही नहीं पाते। जब कोई मीटिंग होती है, मॉर्निंग मीटिंग में, देयर इज नो डेटा। तो उस डेटा को निकालना, अगर वो आपने डिजिटाइज्ड फॉर्म में कहीं पे डेटाबेस के अंदर कहीं पे डाल दिया है, चाहे वो मैनुअल इनपुट्स के थ्रू डाला गया, चाहे वो प्रोडक्शन का डेटा था या क्वालिटी का डेटा था, तभी तो आप उसके एनालिसिस की बात कर पाएंगे। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो एनालिसिस कहां से होगा? उसके बाद ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नंबर आएगा। जब डेटा नहीं है तो एनालिसिस भी नहीं है, एनालिसिस नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती उसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, ये बहुत जेनरिक मोड है कि हम चैट जीपीटी से आपने कुछ पूछ लिया, उसने आपको एक बहुत बड़े डेटाबेस में से निकाल के दे दिया, लेकिन इंडस्ट्री का स्पेसिफिक डेटा वो तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी मशीन है। आपकी मशीन में कब मोटर फेल होने वाली है, कब उसका बेयरिंग फेल होने वाला है, जब तक उसका डेटा इनपुट उसके अंदर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि डिजिटाइजेशन में मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और उसी सीक्वेंस में अगर हम और बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। तो पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजिटाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एफिशिएंसी, प्रोडक्शन और क्वालिटी की। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंट होना चाहिए और क्वालिटी सस्टेनेबल होनी चाहिए। क्वालिटी में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि हमने प्रोडक्ट बनाया। जो भी मशीनें आपके पास आज हैं, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा तो बनाती हैं, लेकिन आप उसकी क्वालिटी का कोई पैरामीटर है ही नहीं आपके पास में, तो कम से कम लो कॉस्ट में सबसे पहले उसकी क्वालिटी मॉनिटर करें। उसको ओके नॉट ओके उस प्रोसेस से करें जहां मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस हो सके। मीन्स आपको कहीं पे कोई कैमरा लगा के अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप सस्टेनेबल बना सकते, मीन्स वो चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको कि कैसे होंगी।
डिजिटाइजेशन करने वाली जो चीजें हैं, कुछ रेडीमेड चीजें कुछ भी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। मशीन भी जैसे आपकी कोई भी मशीन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो एसपीएम्स है अपने आप में, स्पेशल पर्पज मशीन्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो वैसे ही आपका डिजिटाइजेशन भी बिल्कुल स्पेशल पर्पज है। तो प्रोडक्शन क्वालिटी है, जनरल टर्मिनोलॉजी है, इसी तरीके से फिर है ट्रेसेबिलिटी। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में। अभी कुछ आईकैट की कुछ गाइडलाइंस आई थी रिसेंटली कि जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑटोमोबाइल में, तो उनका पार्ट ट्रेसेबिलिटी एटलीस्ट उनके वारंटी पीरियड के लिए कम से कम अवेलेबल होना चाहिए पार्ट मैन्युफैक्चरर के पास, और ऑन डिमांड बेसिस उस डेटा को शेयर भी किया जा सकता है। हालांकि ये सब कुछ इंडस्ट्री, मारुति जैसी कंपनियां तो बहुत पहले से काम कर रही हैं इन सब चीज़ों पे, उनको पता होता है कि उनकी कार में कौन से वेंडर का कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और कब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, उनका रेट ऑफ फेलियर क्या रहा, ये सब उनको वहाँ पे उनके डेटाबेस में अवेलेबल होता है, उसी बेस पे वो वारंटी। एक एग्जांपल दूंगा, जब मारुति नई नई आई थी तो 1 साल की वारंटी दिया करते थे इंजन की। जैसे 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 आज मुझे लगता है कि एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल तो मतलब हर कंपनी की एक मतलब मिनिमम बैंडविड्थ है। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, प्लस अपने ट्रेसेबिलिटी को इम्प्रूव किया, कि हमें ये पता रहा कि हमने कब किस प्रोडक्ट को बनाया और क्या उसका क्वालिटी पैरामीटर्स थे। तो इस तरीके से उस डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से हमें लीकेजेस पता चला, हमने अपनी वारंटी की कॉस्ट कम कर दी, कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाए। तो ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हैं उसी तरीके से डेटा को रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में जो डेटा आपने देखा उसमें से आपने निकाल लिया कि आपने 100 गाड़ी बनाई, 100 में से एक भी फेलियर नहीं है, 1000 बनाई उनमें से कोई एक फेलियर हुआ है, तो उसको एनालाइज करके आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जनरेट कर पाएंगे। ये है कुछ इंडस्ट्री के जो बेसिकली एज विजुअल ट्रिक्स। हमने IoT में बहुत काम किया है पिछले 10-12 साल से। हम लोगों ने अपने खुद के IoT प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं, जिसमें रिमोट मॉनिटरिंग या वायरलेस कम्युनिकेशन जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये जो सामने एक इंस्टॉलेशन है, लेटेस्ट इंस्टॉलेशन है फॉर द टाटा ग्रुप वोल्टाज की ये जो अपना वाटर कूलर होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। करीब 90 स्टेशंस का ये लाइव टेस्टिंग यूनिट है। तो इसमें दोनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं, ट्रेसेबिलिटी और प्रोडक्शन। मींस ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक तरफ से एक मशीन को लोड कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, उसके डेटा को लॉग कर रहा है, लॉग करके उनके सर्वर के ऊपर भी पंच करके रखता है, उनके वारंटी में भी ये हेल्प करता है और लोकल क्वालिटी को भी वर्क करता है। और रनिंग कन्वेयर के ऊपर, क्योंकि ये वायरलेस इक्विपमेंट है, तो वायरलेस इक्विपमेंट बनाने में हमारी मास्टरी है। एंड वी आर सेलिंग अराउंड more than 5,000 devices per year in the various sector of the industry, like in the water segment, in the industrial segment. Especially in industry, we are helping there, and these are the very cost-effective solutions. ये जो मैं एक स्टेशन की बात करता हूँ तो वोल्टाज इस सिस्टम को, वोल्टाज या उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री करीब 1.5 लाख रुपए पर स्टेशन के हिसाब से खरीदती थी। हमने ये सॉल्यूशन उनके लिए अफोर्डेबल, उनका एक सैंपल पैनल भी यहाँ पे रखा हुआ है, स्पेशली हमने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी अपनी लगा के दी है। 2 साल की वारंटी प्लस 10 ईयर्स सपोर्ट के साथ में हम उनको आज की डेट में 40 से 45 हज़ार रुपए के आसपास कुछ वेरी करती है कॉस्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह भी होते हैं, तो उनको पर स्टेशन ये कॉस्ट पड़ती है। तो कंप्लीटली ये सब इन हाउस हम लोग करते हैं, इसीलिए संभव हो पाया है। और लास्ट 10 ईयर से हम इन हाउस डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ में, और डिफरेंट एरिया में इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स। थोड़ा आप आगे बढ़ा दीजिए। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है वो है इंडस्ट्रियल IoT प्रोडक्ट्स। आप हमारे स्टॉल पे जाके फील कर पाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल पैनल्स हमारा इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन इन हाउस होता है। कुछ मीटरिंग प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किए हैं HMI और कंट्रोलर्स के साथ। एप्लीकेशंस में हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, वेब एंड ऐप एप्लीकेशंस के साथ में काम करते हैं। तो अगर MSME में कहीं पे भी किसी तरीके की कंसल्टेशन या कुछ चाहिए तो उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबल सॉल्यूशन दे पाएँ इंडस्ट्री को और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले पाएँ। यही पर्पज़ था आज हमारा यहाँ पे शोकेस करने का, और बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच पर आसीन सभी आदरणीय पैनलिस्ट, मैं पूरे गुरुग्राम इंडस्ट्रीज़ की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतने व्यस्त समय से भी आपने दिल्ली से आकर के यहाँ में समय दिया, जिसमें गुरुग्राम उद्योग जगत में इसकी मांग भी थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और हमारे आदरणीय सभी पैनलिस्ट को ऑनर करें, प्लीज़। Mr. Mukesh Sharma, Shri Naresh Kantur, Dr. Sunil Jha, जेडी साइड है ना, Shri Anup Bhargava, Shri Amarnath Reja ji, thank you so much, sir. Thank you. Thank you. आज हमारे बीच गुरुग्राम उद्योग जगत के साथ ही साथ समाज सेवा का एक ऐसा जाना माना नाम आज जो पहचान के मोहताज नहीं है, कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं 2000 सालों से आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज आप एक मंच पर आएँ और मैं निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से भी कि प्लीज ये हमारे गुरुग्राम की आन बान शान है सर। तो मैं सबसे पहले इन्हें स्मृति चिन्ह देता हूँ। मैं चाहूंगा गुरुग्राम उद्योग जगत की ओर से 2 शब्द प्लीज आप ही करें। जीआई हाउस में बहुत ही भव्य दिव्य और समय की जरूरत के अनुसार जो ये इंडस्ट्रियल कन्वेंशन रखा गया है, मैं तो गुंजन भाई से बहुत बार सीखता भी हूँ, कुछ न कुछ नया ये लाते रहते हैं गुरुग्राम में, और नया भी, यूनिक भी, और अपने नए माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं। आज एआई और रोबोटिक की इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आसान होगा, हम फ्यूचर को कैसे देखते हैं, हमने एक्सपर्ट के द्वारा सुना। और मैं तो एक गुड़गांव वासी होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं पूरे पैनल का, जिन्होंने यहाँ आके इतने अच्छे तरीके से और सरलता के साथ, सहजता के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमें इसके बारे में गाइड किया। गुंजन भाई से भी निवेदन करता हूँ, यहाँ शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट बैठे हैं, कि इस तरह के कार्यक्रम हमें समय समय पे निरंतरता के साथ फ्रीक्वेंटली करते रहना पड़ेगा। यदि मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, यदि हम एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता इसी चीज से होके जाने वाला है। आज हम एथिकली, ईमानदारी में, वफादारी में तो शायद काफी आगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में और डिजिटलाइजेशन में काफी पीछे हैं। हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी पुष्पेंद्र वैसे बैठे हैं यहाँ पे, हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऐप को यूज करनी पड़ जाए तो थोड़ा सा आलस करते हैं। और मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है कि डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि जो इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे बंदा बैठा वो उसका यूज नहीं करता। और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि निचले पायदान वाला व्यक्ति करे और हम उसी से अपना काम चला लें। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी शुरुआत हमें अपने खुद से करनी पड़ेगी और छोटी छोटी ऐप यूज करके करनी पड़ेगी। ज़्यादा ना कहते हुए, आज मेरे साथी स्नेहा जी और मेरी पूरी टीम बैठे हैं यहाँ पे, कॉलेज के स्टूडेंट भी आपने बुलाए, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमें 360 डिग्री काम करना पड़ेगा। ना केवल एक्सपर्ट, ना केवल सरकारें, ना केवल प्रशासन, ना केवल इंडस्ट्रियलिस्ट, हम सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा। और मैं जितने भी इंडस्ट्री के भाई हमारे बैठे हैं, आप सभी से एक निवेदन करता हूँ
कि हम सबको एक बजट बनाना पड़ेगा चैरिटी के तौर पे, कि इतना पैसा आपकी कमाई का 1%, आधा % आपके टर्नओवर का 0.01%, हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के उसको दान देना पड़ेगा। इसके लिए केल्विन फाउंडेशन तैयार है। अब मैं बताना चाहता हूँ, आपका नाम भूल गया मैं, रोहित और स्नेहा कॉलेज के स्टूडेंट है, जिनके कॉलेज में गया था, तो इन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, मुझे काम में लगाओ। हम केल्विन रोजगार सेवा केंद्र 8 मई से मेरे पिताजी की पूरी तिथि उस पर हम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि इस 2024 में हम 2000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड बना के जॉब दिलवाने का काम करें। केल्विन ने पहले हेल्थ की शुरुआत की, महिला कौशल विकास केंद्र की बात की, धर्म के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए हर घर सुंदरकांड मुहिम शुरू की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें जीवन मिला है। यदि मोदी जी 72 साल की उम्र में पूरा देश संभाल सकते हैं, तो पुष्पेंद्र जी हम सब मिलकर एक गुड़गांव को क्यों नहीं संभाल सकते, हर विषय को क्यों नहीं संभाल सकते, तो केवल इंडस्ट्री क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, हम राजनीति की बात हो, सामाजिक की बात हो, नैतिकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, रोजगार की बात हो, पर्यावरण की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, वृद्धों की सम्मान की बात हो, या आत्मविश्वास बढ़ाने की बात हो, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सिर्फ सरकार और प्रशासन इसके लिए नाकाफी। तो आप क्या सहमत है मेरी बात से? तो हमें सबको एक एक करके आगे आना पड़ेगा, जैसे गुंजन मेहता ने शुरुआत की है। इसको क्या पड़ी है बेचारे को, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। तो उसमें भी मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, कई बार हम इसी में कमी निकालने लग जाते हैं कि गुंजन तो इसमें कोई ना कोई कमाई करता होगा, है इसमें कुछ ना कुछ इसका कोई इनिशिएटिव होगा, कुछ ना कुछ हम बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। तो यार कम से कम तारीफ कर दो, है ना नवीन भाई, हम कम से कम उसकी ताली बजा दे। तो शिवपाल जी कम से कम और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी टांग को ना खींचे। इतनी सी बात कहते हुए कि हम सबको आगे आना पड़ेगा, शुरुआत कोई नहीं कर सकता जैसे गुंजन भाई कर रहे हैं। तो मैं केल्विन फाउंडेशन की तरफ से हमेशा बात बोलता हूं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नवीन गोयल भाई भी, आपका छोटा भाई प्रयास कर रहा है कि गुड़गांव को सही मायने में साइबर सिटी मिलेनियम सिटी कैसे बनाया जाए। और जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है अंत्योदय की बात करते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, इसी तरीके से उससे सीख लेके जब एक शीतला कॉलोनी का अंतिम परिवार का व्यक्ति भी AI यूज करने लग जाएगा, डिजिटलाइजेशन में आगे आएगा, स्किल डेवलपमेंट करके आत्मनिर्भर होने की बात करेगा, तभी हम विकसित गुरुग्राम की बात कर सकते हैं। और जब गुरुगांव विकसित गुरुगांव की बात करेंगे, विकसित गांव की बात करेंगे, तभी विकसित भारत हो सकता है। नहीं तो विकसित भारत की परिकल्पना सिर्फ किताबों में रह जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहें, हमारा आना जाना लगा रहे, और हम सब जो भी हमारी नई पीढ़ी है उसको भी अपनी सारी चीजों में जोड़ के आगे चलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बार बार आपको बधाई, आप इसी तरह से कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो DP गोयल जी के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग तो व्हाट्सएप पे फोटो लगाते हैं, तो DP भाई तो हमारा दिल का स्टेटस है, तो हमारे जो दिल पे स्टेटस पे DP लगी है वो ये DP गोयल है। तो DP भाई के लिए जोरदार तालियां। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, हम सब आपके साथ हैं। नवीन गोयल जी, DP गोयल जी की पूरी हम सब पूरी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और गुरुग्राम इंडस्ट्री में हम यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखो जहाँ तक बात रही गुंजन मेहता की, तो गुंजन मेहता गुरुग्राम के लिए काम कर रहा है। इस गुरुग्राम की धरा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 9 साल पहले गुरुग्राम में आया था और खाली हाथ आया था, लेकिन इस गुरुग्राम ने मुझे इतना सब कुछ दिया, भगवान की दया से मुझे पूरा समर्थ बनाया। तो ये गुरुग्राम की पावन धरा का ही कमाल है। जहाँ तक रही सारी उद्योग जगत की, गुरुग्राम में इस तरह के आयोजन करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक नगरी है, इसकी पहचान ही उद्योग जगत है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर लैंड कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ का उद्योग जगत धीरे धीरे पलायन करने लग गया है, जो आने वाले समय में हमारे घर के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा खराब है। हमारे जैसे जैसे न्यू जनरेशन आएगी तो वो नौकरियां करने कहाँ जाएंगे गुड़गांव छोड़कर। हम क्या कहेंगे, हमारे बच्चे बैंगलोर हैं, हम बुढ़ापे में अकेले बैठेंगे वृद्धाश्रम में। तो बस मेरा मेंटली थॉट यही है कि हम लोग सब मिलकर के प्रयास करें
और जितना हो सके गुरुग्राम की औद्योगिक नगरी को ऐसे ऐसे आयाम दें, ऐसे ऐसे मंच दें जहाँ पर ये उद्योग जगत बढ़ता चला जाए। बस यही मेरा प्रयास है। इसमें आप सब मुझे बड़ा सहयोग करते हैं, मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से हमारे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पर जिन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आज के पुनः मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से, सर एक बार फिर आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप एक बार मंच पर आ जाए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका दिया बोलने का। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर मर्करी एडवाइजरी सर्विसेज 2006 से मेरा ऑफिस गुड़गांव में ही है। हम फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों से भी हम जुड़े हुए हैं और किसान की जो फसल बीमा योजना है उनसे भी हम जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं कल को ये सनराइज इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस और बैंकिंग को ज्वाइन करें। मेरी बस इनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। IBMR से ये आज का ऐसा स्पेशल मोमेंट है जब हम हमारे मुख्य जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें इनका सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा है मेरे साथ। गुरुग्राम में अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि तो इतना सब कुछ कैसे कर लेता है, तो ये कुछ साखते हैं।